A very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. Today I'm here and it seems to me as if I'm deer in the midnight headlight. Really, I mean it. I am overwhelmed with gratitude to each and every one of my incredible and amazing subscribers and viewers who has become the part of my spoken English community. I would like to say thanks from the bottom of my heart to each and every one of you. Your comment, your participation, your suggestions fuels my spirit of teaching. Whenever you all comment and ask me the doubts, it seems to me as if my efforts are paid off. Really, I mean it. Today I'm here especially to say a lot and bunches and thousands of thanks to each and every one of you as I've completed my 1,000 subscribers just by your support and encouragement in simply I think 100 days. So this is good achievement for me and for you too. Okay, there are so many things to be discussed today. आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी. But first of all, I must make it very clear to everyone कि हमारी जो जर्नी है, we have aimed high, है ना? हमारा aim शुरू से shoot for the moon, aim very high. In case we fall, we will be among the stars, है ना? We will be among the stars. Based on this principle, based on this psychology, we started a small journey. इन सारी चीज़ों को लेके हमने एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट की थी आप लोगों के साथ, जो कि अमेजिंग है, रियली अमेजिंग है. And I would like to say thanks to each and every one of my students, my ex-students, my friends, my cousins, my relatives, who has been very supportive to me. And at last but not the least, I would like to convey my warm thanks to my team members, my collaborators, and all the well-wishers. So this is all about my journey for getting 1,000 subscribers. I'm feeling like I'm on the cloud 9. Okay, so keep tuned, keep watching. Love you all. Thanks and thanks for being the part of my community. Love you all. अच्छा, second thing, हम क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बातें करना चाहते हैं. You have to stay for just 10 minutes to listen what I'm saying. Mark my words which I am saying in this platform of my spoken English classes. मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना, कि you will definitely start speaking English. And I've seen results also. There are so many of my students, those who are sitting in front of me, in fact, those who were very basic learners, है ना, they were very beginners, very basic, but still now they are able to speak a lot. हाँ, अभी I can't say कि they started talking fluently, but still they started. Why? There are so many points which they kept in their mind, and the same which you all have to keep it in your mind. There are 5 mantras, 5 steps of spoken English classes which I have already discussed. मैंने इसके पहले भी आपसे सारी बातें डिस्कस की हुई हैं, है ना. Once again I would like to tell you all about spoken English classes. Okay, पहली चीज आपको क्या करनी है इंग्लिश बोलने के लिए. First of all, the same I'll repeat. बच्चा, पहली चीज
तो आपको स्टार्ट करना है. इफ यू रियली विश टू स्टार्ट, get ready to start. Okay, yeah, get ready to roll, to turn over a new leaf. We have to start from scratch. हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना है. ओके, बिकॉज अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, इसका मेन रीजन कुड बी द वन एंड द ओनली कि यू मस्ट हैव स्किप्ड माई क्लासेस. ओके, आपने कोई ना कोई लिंक को तोड़ दिया है ना. वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. ओके, पहली चीज देखिए, इसके पहले जब मैंने ये वीडियो बनाया फॉर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आप लोगों को समझाने के लिए, दैट टाइम वी वर देयर, वी हैड कंप्लीटेड पार्ट ऑफ स्पीच. उस समय हमने पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट किया था. एंड आई यूज टू गिव यू द फ्रेजेस, स्मॉल सेंटेंसेस एंड ऑल, है ना. उस समय तक हम इतना पढ़ चुके थे. बट अभी की जो जर्नी है ना, इसमें काफी कुछ हमने कवर कर लिया है ना. तो उन्हीं चीजों को हमें कैसे कॉम्पैक्ट रखते हुए स्पोकन में काम करना है, दिस आई विल बी टेलिंग यू विद इन 5 पॉइंट्स, है ना. दैट दे आर रियली मिरेकुलस. चलिए देखते हैं क्या है. पहली चीज, एवरी टाइम आई हैव टोल्ड यू ऑल, हर बार मैंने आपको बताया है, पिक अप द वर्ड, सेंटेंस, phrases, clauses, idioms, whatever you like. ठीक है? Whatever you like, just fall in love and just pick it up. For example, मान लीजिए आप बच्चे को डांटते हैं. ओके, छोटे छोटे सेंटेंस आई ऑलरेडी गिवन यू, है ना. गेट अप, ब्रश योर टीथ, गो टू वॉशरूम, है ना. गेट ड्रेस्ड अप प्रॉपरली, व्हेन बिगिंस टू गो, कम ऑन फास्ट, चॉप चॉप. There were so many sweet words. याद है आपको? चॉप चॉप मतलब hurry up, fast, है ना. There were so many good words, है ना. बहुत सारे words तो मेरे लिए भी बहुत नए हैं, है ना. But I have learned. कैसे? क्योंकि मुझे पसंद है. आ गया. चॉप चॉप is one of them. Spick and span, राइट, नीट एंड क्लीन. हमारे जमाने में तो कॉपियों में मैम लोग ऐसे लिखती थी, राइट, नीट एंड क्लीन. Nowadays teachers used to write spick and span. That is also cool, है ना. और जल्दी, कम ऑन, हम क्या कहते थे? हरी अप. Nowadays क्या चल रहा है? चॉप चॉप. कैसा है? जल्दी जल्दी, चॉप चॉप, है ना. तो ऐसे ही आपको लर्न करना है ना. दिस इज हाउ यू हैव टू इमिटेट एंड दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डिलीवर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बेटे, आई हैव टोल्ड यू दिस इज स्पेशली फॉर विमेन, for men also. For women क्या है, there are so many imperative sentences जिस समय हम या तो कमांड करते हैं, है ना, कमांड देते हैं या ऑर्डर करते हैं, है ना. तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत शॉर्ट में थे, along with the idioms हमने कहा आपको याद करने के लिए, है ना. तो उसी तरीके से आपको याद करने हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल idioms में जैसे हम बच्चों को डांट रहे हैं या किसी से भी यूज टू से, ज्यादा नाटक मत करो. हाँ, ज्यादा नाटक मत करो, ज्यादा बनो नहीं, है ना. बच्चे आपस में कहते हैं ज्यादा बनो नहीं. हाँ, तुम्हें सब आता है. तो व्हाट यू हैव टू से, सिंपली यू हैव टू से, एक्सक्यूज मी, ड्रॉप द एक्ट. नाटक बंद करो या नाटक मत करो. दिस इज हाउ यू हैव टू से, स्टॉप द एक्ट. डोंट बी सो नैव, मतलब डोंट बी सो नैव मतलब बहुत भोला है मत बनो, तुम्हें सब आता है ना. ये कॉन्वर्सेशन इज वेरी कॉमन. या बच्चों को ही हम डांटते हैं, बहुत छूट दे रखी है मैंने, आई हैड गिवन यू अ लॉन्ग रोप, नाउ आई विल कट इट डाउन. ठीक है. सो दीज आर द इडियम्स एंड द फ्रेजेस व्हिच वी यूज. इंपॉर्टेंट चीज बताने का ये है कि यू हैव टू सिलेक्ट द वर्ड्स or sentences, idioms, phrases, whatever you feel like. ठीक है. You have to take it. You have to imitate until it comes to your head. ठीक है. Until it gets into your head and comes out with your tongue. ठीक है.
ऐसे इमिटेट करना है आपको, है ना। सिर्फ आपको पेपर में पढ़ना नहीं है ना, पेपर में लिखना है। यू हैव टू इमिटेट विद द सेम एक्सप्रेशन। आप में कि एक्सप्रेशन आनी चाहिए। हमने इंटरजेक्शंस पढ़े हैं, प्रॉपर एक लेसन है ना, पार्ट ऑफ स्पीच का, कि आपके एक्सप्रेशन मस्ट बी देयर। कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे? तो फर्स्ट मंत्रा इज pick up the word, sentence, phrase, idiom and fall in love. Okay. Second, imitate and learn it till it gets into your head and comes out with your tongue. ठीक है, ये याद करने के बाद, ठीक है, अब मान लीजिए इफ यू आर अ वुमेन, अगर आप मम्मा हैं, सिस्टर हैं या फादर है, कुछ भी, अब ये तो बहुत कॉमन है कि शाम को किसी ना किसी बच्चे को डांट पिटते हैं, या हम पढ़ाते समय बोलते हैं, या बीइंग अ टीचर बच्चों को डांटते हैं। तो अभी मैंने आपको कई सेंटेंसेस बोले ना, या बेटा पढ़ने की आदत डालो, जल्दी उठने की आदत डालो। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, आप छोटा सा सेंटेंस बोलिए ना। कैसे बोलना है? गेट इनटू द हैबिट ऑफ लर्निंग, गेट इनटू द हैबिट ऑफ पेंटिंग, गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग, गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, है ना। तो आप खुद भी देखिए ना, एक शब्द, एक छोटा सा फ्रेज हमने बोला, गेट इनटू द हैबिट ऑफ। अब गेट इनटू द हैबिट ऑफ कुड बी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड थिंग्स। इसका आप कितने भी सेंटेंस बनाइए, है ना, दे आर अमेजिंग। तो दिस इज हाउ यू हैव टू इमिटेट, दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न, दिस इज हाउ यू हैव टू ग्रास्प। ठीक है, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, get into the habit of reading, get into the habit of dancing, get into the habit of getting early, get into the habit of learning good things, get into the habit of whatever you feel like. ठीक है, so this is how you have to use these phrases, idioms, sentences daily. ठीक है, then most important is after learning and when it comes to tongue, you have to mix match with your Hindi or your particular local language. For example, if I'm talking in Bagheli, for example, अगर हम बघेली में बोली थे, तो हम या मैं बोल सकी थे कि ड्रॉप द एक्ट, हमसे ज्यादा नाटक वाटक ना करी अपना, है ना, डोंट बी सो नैव, ज्यादा भोली ना बनी हुई, हम जानी थे जितना अपना का पता है और कितना नहीं पता। ठीक है, दिस इज माई लोकल बघेली लैंग्वेज विच आई हैव टू मिक्स इट अप। गेट अप अर्ली, है ना, या अर्ली बर्ड्स, जल्दी उठने वाले, है ना, तो का जल्दी उठी, है ना, दिस इज हाउ वी हैव टू से, तो का जल्दी उठी, होइगा भिनसरहा होइगा। ठीक है, तो मीन्स आई वुड लाइक टू से कि मिक्स इट विथ योर लोकल लैंग्वेज। खड़ी भाषा में बोलना है, आप खड़ी भाषा में बोलिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू हर, अरे उससे बात करने ना करने का कोई फायदा नहीं है। खड़ी हिंदी आपने इंग्लिश में बोला, इवन इंग्लिश हिंदी, एक ही सेंटेंस को आप बोल दीजिए, उससे देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू हर, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो यू हैव टू मिक्स इट विथ योर लैंग्वेज। जैसे हिंदी में अभी हमने बोला, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल समझने को तैयार ही नहीं होगी। One sentence I said in English, okay, there is no point in talking to her. English, now Hindi. कोई मतलब नहीं है उसे समझाने का, उसके समझ में भी नहीं आएगा। Okay, so बताने का मतलब है कि it goes parallel. कोई बुराई नहीं है if you are mixing it with your native या हिंदी लैंग्वेज या बघेली लैंग्वेज या whatever local language you are having, you can mix it with अवधी also, है ना। हमका क्या करेगा है, what to do, क्या करना है, हमका क्या करेगा है, आप बताई दें, हम कर ले, just tell me what I have to do, I'll do, है ना। इसको हमने अवधी में बोला, आप हमका बताई दें क्या करेगा है, हम कर ले, you know, don't have to worry. How it felt? I don't think so. It must have felt bad. No issue. Be confident what you are speaking about. ठीक है? We are in our environment and our environment is of simply of Hindi.
हम सुबह से शाम, रात, दिन, दोपहर, हर जगह along with our worker, along with our teachers, friends, family and everyone, we are surrounded with Hindi, Hindi, Hindi. तो no need to hesitate at all. And I promise, even I can promise you कि मैं भी कभी पूरे टाइम इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, सीरियसली. एंड बीइंग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की वजह से मैं यहाँ की बिल्कुल लोकल लैंग्वेज बघेली में भाषण भी देती हूँ, बात करती हूँ. एंड दैट इज टिपिकल बघेली. यू वोंट बिलीव इफ यू विल सी मी. हम अपने लोगों के बीच में जब हम रहते हैं, देन यू वोंट अग्री, यू वोंट इमेजिन कि मैं ही बोल रही हूँ. तो दैट डजंट मैटर. बी फील कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर स्पीकिंग. don't at all keep your moral down. ठीक है? Don't wait for others कि who will break the ice, who will start, who will roll on. ना, किसी को नहीं. We have to take care of our roots, है ना? We have to take care of ourselves. We have to learn new skills. We have to imitate. We have to give this skill to our children, है ना? So we don't have to wait for others कि कोई हमें बताएगा और आएगा, है ना? We ourselves have to make our aura. हमें अपना ऑरा अपनी फैमिली, अपने बच्चों और अपने दोस्तों के साथ खुद बनाना है, ठीक है? और इन केस अगर कोई हंसता है, दैट हार्डली मैटर्स. क्या हो जाएगा अगर किसी ने हंस दिया? तो क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है. अच्छा, वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू कि when I came in politics and पहली बार जब मुझे बुलाया गया किसी प्लेस पे भाषण देने के लिए, एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी मेरे लिए. एंड दे कॉल्ड माय नेम, ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस्ड मी विथ सो many good words and all. Then what has happened, all of a sudden I was blank because I was not able to give bhashan over there. Why? Because I was not at all prepared for giving bhashan in Hindi. बिल्कुल भी मैं prepared नहीं थी. And for God's sake, you won't believe कि I had given bhashan in English. और वहाँ पे पूरे गांव के लोग थे जहाँ पे, but the good thing was कि I was in the school premises, so सारी चीजें अच्छे से पैच अप हो गई. But from that day I promised to them, all the people present there, कि I'll learn Bagheli, and in the next time when I'll come here, I'll talk in Bagheli. So I did. I learned it. कहाँ से learn किया? Do you know? मैं उस environment में मैंने जिया है. उस एनवायरमेंट में मैंने जिया है. मैं लोगों से उसी भाषा में बात कर रही थी, उसी भाषा में रह रही थी. एंड प्रॉमिस, विद इन नो टाइम आई हैव लर्नड टिपिकल बघेली. अवधि इज माय नेटिव वन. ओके, सो मतलब सार क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि यू हैव टू मिक्स एंड मर्ज विथ योर लोकल लैंग्वेज. ओके, देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ग्रामर. ग्रामर आई वोंट बी प्रेफरिंग कि आपको स्किप करना है. मैं कभी भी स्किप करने के लिए ग्रामर नहीं कहती हूं, और नेवर एवर आई विल से, बिकॉज ग्रामर टीचर्स अस अ lot and it keep fueling our ambition, learning spirit, and it keeps our moral high. क्यों? क्योंकि जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हम अपनी मिस्टेक्स को खुद भी समझ जाते हैं कि आई हैव डन मिस्टेक हियर, या दिस नीड टू बी करेक्टेड. और बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया है हमने. पार्ट ऑफ स्पीच बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझाया था ना, प्रिपोजिशन का यूज हम कैसे कर ले, दिस, दैट, दीज आर, दोज आर. दिस इज वेरी बेसिक, वेरी वेरी बेसिक, है ना. इवन आई हैव कंपेयर्ड द होल ऑफ द ग्रामर विथ आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. पूरा का पूरा जो पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ा है, दे आर लाइक आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. जिस तरीके से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं और फिर कोलैबोरेट होते हैं, एक साथ मिलके एक पूरी बॉडी की संरचना करते हैं, इसी तरीके से हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के हर एक चीज पार्ट ऑफ स्पीच है, चाहे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन,
एंड ऑल इंटरजेक्शंस, ये सारी चीजें मिलके पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, दैट इज ग्रामर. एंड ग्रामर का टेंसेस, द मोस्ट अवेटेड जो चीजें थी, दैट हैज बीन कवर्ड. टेंसेस वाज द हार्ट पंपिंग ऑर्गन ऑफ ग्रामर. टेंसेस पढ़ने से हमें पूरी की पूरी इंग्लिश का ज्ञान होता है. ओके और टेंसेस में हमने क्या पढ़ा था? टेंसेस में पूरा का पूरा बॉड मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा. दिस मस्ट बी वेरी first time you must be hearing the concept of bord mass in grammar. This has been introduced by me myself only, but those who have seen my videos, आपको बेहतर पता होगा कि बॉड मास का कॉन्सेप्ट हमने किस तरीके से लिया है टेंसेस को पढ़ाने के लिए. फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ हैव, डी फॉर फॉर्म ऑफ डू, M for main verb, V1, V2, V3, V4, V5, A for auxiliary or helping verb, that is am, are, was, were, will be, shall be, has, have, had, will have, shall have, do, does, did, will do, shall do, and last was the subject verb agreement. मतलब when subject was single, verb was also single. जब subject was plural, verb was also plural. बताने का मतलब बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको बताया है कि जिस तरीके से हार्ट का काम होता है टू पंप ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू कीप द बॉडी अलाइव, उसी तरीके से इज द टेंसेस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द बॉडी मास विच गिव्स ऑक्सीजन, विच सप्लाई ब्लड ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड. इसी तरीके से पूरी की पूरी इंग्लिश बोलने की प्रक्रिया में, स्पोकन इंग्लिश में आपको पूरा का पूरा पंप करता है tenses. ठीक है? And that have been explained in very marvelous and in very simple language. Okay? And yes, idioms. My dear Jan, idioms is my Jan. Idioms के I'll be taking separate lectures. But जब हम separate lectures लेंगे उसके पहले you must be very familiar with so many idioms because I used to use so many idioms in my lectures. है ना? बहुत सारे इडियम्स मैं बोलती हूँ ताकि आपको जब मैं इडियम्स पढ़ाऊं तो आपको वो चीजें बिल्कुल भी नई ना लगे, है ना? जैसे जल्दी उठना को क्या कहते हैं? हाँ, शी इज अ अर्ली बर्ड, शी इज एन अर्ली बर्ड. ठीक है? जो रात भर सोता है, ही इज अ नाइट आउल, है ना? इज अ नाइट आउल. कितना सिंपल सी बात है यार, कितनी सिंपल सी बातें कही जा रही है. इज अ नाइट आउल. बहुत छूट दे रखी है आपने अपने बेटे को. यू हैड गिवन अ लॉन्ग रोप. हाँ यार, I'll cut it down. हिंदी इंग्लिश. ठीक है? हिंदी इंग्लिश. दिस इज हाउ यू हैव टू से. बहुत ये कोई मुश्किल काम नहीं. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. कोई चीज आपको बहुत अच्छे से आती है, यू कैन से इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी. पीस ऑफ केक. और कोई चीज जैसे आपको पसंद नहीं है करना एंड ऑल, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. How you have to say it's not my cup of tea. It's not my cup of tea. अभी जो मैंने स्टार्ट किया उस पे I have said I'm deer in the midnight headlight. इसका प्रॉपर इडियम है I'm deer in the headlight. मतलब जिस तरीके से रात में डियर की आंखों में हेडलाइट पड़ती है तो क्या होता है, कुछ भी रिएक्शन नहीं दे पाता है ना, एकदम स्तब्ध रहता है. So these are the idioms in which I myself have introduced the word midnight. एकदम बीचों बीच रात के 12 बजे जब ऐसा होता है ना. So आपको बस थोड़े से शब्दों के खेल को और जाल को समझना है. ये थोड़ा सा शब्दों का चक्रव्यूह होता है जिसको आपको समझना है. हाँ, I promise when you will fall in love, you will fall in love with each and every segment of English. आपको खुद भी बहुत प्यार हो जाएगा इंग्लिश में बात करने से, इंग्लिश पढ़ने से एंड एवरीथिंग. And one more important announcement I would like to say कि we have completed grammar का 80% portion has been covered, in which we have covered part of a speech, sentences, all the type of sentences and tenses with 25 lectures. You have to go through all the lectures along with the 100-day course of spoken English, जिसमें we have completed I think 25-30 हमने किया है.
एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, देर आर सो मेनी क्लासेस ऑफ कॉन्वर्सेशन जिसमें मैं बोर्ड पे नहीं लिखती हूँ. उसका मतलब मेन मतलब ये है कि यू मस्ट इमिटेट द सेम. हर एक चीज शुड नॉट बी ऑन द कॉपी, एवरीथिंग शुड नॉट बी नोटेड. बहुत सारी चीज आपको देख के मुझे इमिटेट करना है, वैसे ही लर्न करना है. प्रॉमिस, देर आर सो मेनी इडियम्स जो मैंने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा एंड आई हैड फॉरगॉटन, लेकिन जब वो ऑल ऑफ सडन हमारे सामने आता है या किसी ने बोला या आई हैव हर्ड समवेयर, तो क्या होता है, इट कम्स टू माई माइंड, अरे ये इसका मतलब ये है ना. जैसे हम रहीम दास जी के दोहे वेहे पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा काम करता है ना. कहते हैं जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, है ना. रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित जगत मां जान पड़त सब कोई. रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोरे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए. ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये देखिए, ये इतने प्यारे दोहे है ना, रहीम दास जी के दोहे हों चाहे कबीर दास जी के दोहे हों, हम लोगों ने इसे स्कूल डेज में पढ़े थे, बट सारी चीजें हमें याद हैं, है ना. इसी तरीके से आर द इडियम्स एंड ऑल. अच्छा, इडियम्स याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताती हूँ. आई विल बी टेलिंग इन लेक्चर ऑल्सो, अभी भी बताती हूँ आपको. जैसे इडियम को यू हैव टू कोरिलेट विथ योर फैमिली मेंबर्स. जैसे इडियम फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे मेरा छोटा बेटा बिना कुछ सोचे समझे फटाक से बोल देता है, तो अब कोई बच्चा या कोई भी बिना सोचे समझे जो फटाक से बोलता है उसको आप क्या कहेंगे, क्विक ऑन द ट्रिगर. क्या है इडियम, क्विक ऑन द ट्रिगर. तो आपको यू हैव टू कोरिलेट दिस इडियम विथ योर, जिससे भी आपको करे. जैसे मैं इसे कोरिलेट करती हूँ अपने छोटे सन से, है ना, बेटे से. तो आई ऑलवेज यूज टू से, बेटा यू आर ऑलवेज क्विक ऑन ट्रिगर, टेक अ पॉज बिकॉज लूज लिप्स सिंक्स द शिप. मतलब बिना सोचे समझे अगर आप इतना बोलेंगे तो नैया तो डूब जानी है. ऑब्वियसली बिना सोचे समझे तो हमें बोलना नहीं है. तो आई हैव कोरिलेटेड दीज इडियम्स विथ माई किड, है ना. ही इज एप्पल ऑफ हर मदर या हर ग्रैंड मदर, ही इज एप्पल ऑफ हर ग्रैंड फादर, जो भी है. किसी के लिए आपको कुछ भी बोलना है, ही अर्न्स पैनी, ऑनेस्ट पैनी. वो बहुत नेक दिल से अच्छे से पैसा कमाता है ना. ही अर्न्स अ पैनी एंड ऑनेस्ट पैनी. एंड जैसे लूमी ट्यून्स मतलब थोड़ा दिमागी रूप से डिस्टर्ब होना या समथिंग. इफ समवन इज देयर इन योर फैमिली, यू कैन कोरिलेट दैट वर्ड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, है ना. तो मतलब बताने का, देर आर सो मेनी थिंग्स विच आई हैव कोरिलेटेड विथ माई kids, my different family members. For example, salt of the earth, my elder son is salt of the earth, बहुत वफादार और बहुत ही सच्चा. So these are the idioms which we have to learn. And yes, at the last but not the least, most important announcement has to be made. That is, I'll be starting separate batches for females, है ना. विमेन के लिए आपका सेपरेट बैच होगा एंड देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डिस्कस्ड. हमने विमेन के लिए बैच क्यों अलग बनाया है, दैट हैज टू बी डिस्कस्ड. आई विल बी डिस्कसिंग इट लेटर. और फिजिकल क्लासरूम के लिए भी यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, एज यू ऑल आर फैमिली विथ माई नंबर 7748985823. ओके, सो बच्चा, कीप वॉचिंग, कीप ट्यून. लव यू ऑल, कीप योर मोरल हाई. ओके, love you all, keep watching, keep tuned, and please do like, comment and share my video. Okay, happy Mahakumbh. Start diving into the Ganga Mai. Love you all, bye bye.